जरमिया 48 चैप्टर 49 चैप्टर हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से 48-49 किंग्स जेम्स वर्जन में से। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए। हम आपसे विनती करते हैं, बिना आपके परमेश्वर के आत्मा हम ये वचनों को समझ नहीं सकते हैं। हम अपने हाथ ऊपर उठा लेते हैं, अपने घुटनों को टेक देते हैं। हम नहीं पढ़ सकते हैं इन वचनों को। खुदा, हमसे ये समझ ही नहीं आएगा हमको कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ लिखी हुई बातें हैं। खुदा परमेश्वर हमारे लिए जब तक इन बातों के अंदर के जो परमेश्वर चाहता है वो भेद जब तक आप हमारे ऊपर जाहिर नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर रह सकते हैं। यही सच्चाई है खुदा। इसके लिए पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं, यह अध्याय के वचनों को हमें सिखाइए, समझाइए, हमें बुद्धिमानी बनाइए, हमें ईश्वरीय रचना में उतर कर आने के लिए सहायता कीजिए। हमें फिट एंड फिक्स होने में हमारी मदद कीजिए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुनो और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। चैप्टर 48 जरमिया चैप्टर 48 Judgment of Moab for several corruptions, restoration of Moab. Against Moab, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, woe unto Nebo, for it is spoiled. Kiriathaim is confounded and taken. Mizgab is confounded and dismayed. There shall be no more praise of Moab in Heshbon. They have devised evil against it. Come and let us cut it off from being a nation. Also thou shalt be cut down, O madman, the sword shall pursue thee. A voice of crying shall be from Horonaim, spoiling and great destruction. Moab is destroyed. Her little ones have caused a cry to be heard. For in the going up of Luhith continual weeping shall go up, for in the going down of Horonaim the enemies have heard a cry of destruction. Flee, save your lives, and be like the hid in the wilderness. For because thou hast trusted in thy works and in thy treasures, thou shalt also be taken. And Chemosh shall go forth into captivity with his priests and his princes together. And the spoiler shall come upon every city, and no city shall escape. The valley also shall perish, and the plain shall be destroyed, as the Lord hath spoken. Give wings unto Moab, that it may flee and get away, for the cities thereof shall be desolate, without any to dwell therein. Cursed be he that doeth the work of the Lord deceitfully, and cursed be he that keepeth back his sword from blood. Moab hath been at ease from his youth. देखिए एक वचन यहाँ पर मैं भी मार्किंग कर लेती हूँ इसको। देखिए ये क्या लिखा है यहाँ पर, आप 10 वचन देखिए। हिंदी में पढ़ेंगे हम इसको बाद में, मैंने मार्किंग तो कर लिया है। 11th वर्स से आगे, Moab hath been at ease from his youth, and he hath settled on his lees, and hath not been emptied from vessel to vessel, neither hath he gone into captivity. Therefore his taste remained in him, and his assent is not changed. Therefore, behold, the days come, saith the Lord, that I will send unto him wanderers, that shall cause him to wander, and shall empty his vessels and break their bottles. And Moab shall be ashamed of Chemosh, as the house of Israel was ashamed of Bethel, their confidence. How say ye, we are mighty and strong men for the war? Moab is
spoiled and gone up out of her cities, and his chosen young men are gone down to the slaughter, said the king, whose name is the Lord of hosts. The calamity of Moab is near to come, and his affliction hasteth fast. All ye that are about him, bemoan him, and all ye that know his name, say, how is the strong staff broken, and the beautiful rod? Thou daughter that doest inhabit Dibon, come down from thy glory, and sit in thirst, for the spoiler of Moab shall come upon thee, and he shall destroy thy strongholds. O inhabitant of Aroer, stand by the way and espy, ask him that fleeth and her that escapeth, and say, what is done? Moab is confounded, for it is broken down. Howl and cry, tell ye it in Arnon that Moab is spoiled, and judgment is come upon the plain country, upon Holon, and upon Jahaza, and upon Mephath, and upon Dibon, and upon Nebo, and upon Beth Diblatayim, and upon Kiriatayim, and upon Beth Gamol, and upon Beth Meon, and upon Kirioth, and upon Bozrah, and upon all the cities of the land of Moab, far or near. The horn of Moab is cut off, and his arm is broken, said the Lord. Make ye him drunken, for he magnified himself against the Lord. Moab also shall wallow in his vomit, and he also shall be in derision. For was not Israel a derision unto thee? Was he found among thieves? For since thou spakest of him, thou skippest for joy. O ye that dwell in Moab, leave the cities, and dwell in the rock, and be like the dove that maketh her nest in the sides of the hole's mouth. We have heard the pride of Moab. He is exceeding proud, his loftiness and his arrogancy, and his pride and the haughtiness of his heart. I know his wrath, said the Lord, but it shall not be so. His lies shall not so affect it. Therefore will I howl for Moab, and I will cry out for all Moab. Mine heart shall mourn for the men of Kirneres. A vine of Shoma I will weep for thee with the weeping of Jazer. Thy plants are gone over the sea, they reach even to the sea of Jazer. The spoiler is fallen upon thy summer fruits, and upon thy vintage, and joy, the gladness, is taken from the plentiful field, and from the land of Moab. And I have cast wine to fail from the wine presses. None shall tread with shouting. Their shouting shall be no shouting. From the cry of Heshbon even unto Eliale, and even unto Jahaz have they uttered their voice. From Zoar even unto Horonaim, as an heifer of 3 years old. For the waters also of Nimrim shall be desolate. Moreover, I will cause to cease in Moab, said the Lord, him that offereth in the high places, and him that burneth incense to his gods. Therefore mine heart shall sound for Moab like pipes, and mine heart shall sound like pipes for the men of Kirheres, because the riches that he hath gotten are perished. For every head shall be bald, and every beard clipped. Upon all the hands shall be cuttings, and upon the loins sackcloth. There shall be lamentation generally upon all the housetops of Moab, and in the streets thereof.
For I have broken Moab like a vessel wherein is no pleasure, said the Lord. They shall howl, saying, how is it broken down? How hath Moab turned the back with shame? So shall Moab be a derision and a dismaying to all them about him. For thus saith the Lord, behold, he shall fly as an eagle, and shall spread his wings over Moab. Kerioth is taken, and the strongholds are surprised, and the mighty men's hearts in Moab at that day shall be as the heart of a woman in her pangs, and Moab shall be destroyed from being a people, because he hath magnified himself against the Lord. Fear and the pit and the snare shall be upon thee, O inhabitant of Moab, saith the Lord. He that fleeth from the fear shall fall into the pit, and he that getteth up out of the pit shall be taken in the snare. For I will bring upon it, even upon Moab, the year of their visitation, saith the Lord. They that fled stood under the shadow of Heshbon because of the force, but a fire shall come forth out of Heshbon, and a flame from the midst of Sihon, and shall devour the corner of Moab and the crown of the head of the tumultuous ones. Woe be unto thee, O Moab! The people of Chemosh perisheth, for thy sons are taken captives, and thy daughters captives. Yet will I bring again the captivity of Moab in the later days, saith the Lord. Thus far is the judgment of Moab. 49th chapter, Judgment of Ammon, Edom, Damascus, Kedar, Hazar, and Elam. Restoration of Elam. First verse. Concerning the Ammonites, thus saith the Lord, hath Israel no sons? Hath he no heir? Why then doeth their king inherit Gad, and his people dwell in his cities? Therefore, behold, the days come, saith the Lord, that I will cause an alarm of war to be heard in Rabbah of the Ammonites, and it shall be a desolate heap, and her daughters shall be burned with fire. Then shall Israel be heir unto them that were his heirs, saith the Lord. Howl of Heshbon, for Ai is spoiled. Cry, ye daughters of Rabbah. Gird you with sackcloth, lament, and run to and fro by the hedges, for their king shall go into captivity, and his priests and his princes together. Wherefore gloriest thou in the valleys, thy flowing valley, O backsliding daughter, that trusted in her treasures, saying, who shall come unto me? Behold, I will bring a fear upon thee, saith the Lord God of hosts, from all those that be about thee, and ye shall be driven out every man right forth, and none shall gather up him that wandereth. And afterward I will bring again the captivity of the children of Ammon, saith the Lord. Concerning Edom, thus saith the Lord of hosts, is wisdom no more in Theban? Is counsel perished from the prudent? Is their wisdom vanished? Flee, yea, turn back and dwell deep, O inhabitant of Dedan, for I will bring the calamity of Esau upon him, the time that I will visit him. If grape gatherers come to thee, would they not leave some gleaning grapes? If thieves by night, they will destroy till they have enough. ये वचन को हिंदी में सुनेंगे हम 9 वचन.
But I have made Esau bare, I have uncovered his secret places, and he shall not be able to hide himself. His seed is spoiled, and his brethren and his neighbors, and he is not. खास ध्यान देने की बात है, his seed is spoiled. आपको पता है ये वचन मैं हिंदी में जब पढ़ूंगी आपको वहाँ पर भी मैं बताऊंगी. उसका बीज करप्ट हो चुका था, दूषित हो चुका था. ओके, आपको पता है सदोम गमोरा को क्यों मार डाला पूरी तरह से परमेश्वर ने? क्योंकि उसका चाल चलन बिगड़ा था. आपको पता है नूह के समय क्यों आया था बाढ़? क्योंकि उस समय के लोगों का चाल चलन खराब हो चुका था. ओके, जब परमेश्वर देखता है कि बीज दूषित हो चुका है, उस इंसान को वो खत्म कर देता है. ओके, वो दूषित बीज को या तो प्रभु में उद्धार पाने से नए बीज से वो जन्म लेता है, वो परमेश्वर के वचन से जन्म लेता है. लेकिन अगर वो दूषित बीज है जो आगे चलकर परमेश्वर के राज्य के लिए और ज़्यादा ट्रबल्स करेगा, उसको वो ख़त्म कर देता है. ओके, चाहे वो शहर रहे, चाहे वो देश रहे, चाहे वो ज़मीन के ऊपर की बातें रहे, कुछ भी रहे, वहाँ पर परमेश्वर दूषितपन को बढ़ाने वाले लोग रुकने नहीं देता है. ओके, यहाँ पे देखिए क्या है. His seed is spoiled, and his brethren and his neighbors, and he is not. Leave thy fatherless children, I will preserve them alive, and let thy widows trust in me. For thus saith the Lord, behold, they whose judgment was not to drink of the cup have assuredly drunken, and art thou he that shall altogether go unpunished? Thou shalt not go unpunished, but thou shalt surely drink of it. For I have sworn by myself, saith the Lord, that Bozrah shall become a desolation, a reproach, a waste, and a curse, and all the cities thereof shall be perpetual wastes. I have heard a rumor from the Lord, and an ambassador is sent unto the heathen, saying, Gather ye together and come against her, and rise up to the battle. For lo, I will make thee small among the heathen, and despised among men. Thy terribleness hath deceived thee, and the pride of thine heart. O thou that dwellest in the clefts of the rock, that holdest the height of the hill, though thou shouldest make thy nest as high as the eagle, I will bring thee down from thence, saith the Lord. Also Edom shall be a desolation, every one that goeth by it shall be astonished, and shall hiss at all the plagues thereof, as in the overthrow of Sodom and Gomorrah, and the neighbor cities thereof, saith the Lord. No man shall abide there, neither shall a son of man dwell in it. Behold, he shall come up like a lion from the swelling of Jordan against the habitation of the strong. But I will suddenly make him run away from her. And who is a chosen man that I may appoint over her? For who is like me, and who will appoint me the time? And who is that shepherd that will stand before me? Therefore hear the counsel of the Lord that he had taken against Edom, and his purposes that he had purposed against the inhabitants of Teman. Surely the least of the flock shall draw them out. Surely he shall make their habitations desolate with them. The earth is moved at the noise of their fall, at the cry the noise thereof was heard in the Red Sea. Behold, he shall come up and fly as the eagle, and spread his wings over Bozrah. And at that day shall the heart of the mighty men of Edom be as the heart of a woman in her pangs. Concerning Damascus, Hamath is confounded, and Arpad, for they have heard evil tidings.
They are faint-hearted. There is sorrow on the sea. It cannot be quiet. Damascus is waxed feeble and turneth herself to flee, and fear hath seized on her. Anguish and sorrows have taken her as a woman in travail. How is the city of praise not left, the city of my joy? Therefore, her young men shall fall in her streets, and all the men of war shall be cut off in that day, saith the Lord of hosts. And I will kindle a fire of the wall of Damascus, and it shall consume the palaces of Benhadad, concerning Kedar and concerning the kingdoms of Hazor, which Nebuchadnezzar king of Babylon shall smite, thus saith the Lord. Arise, ye, go up to Kedar, and spoil the men of the east. Their tents and their flocks shall they take away. They shall take to themselves their curtains and all their vessels and their camels, and they shall cry unto them, fear is on every side. Sorry, 30 वर्स से आगे पढ़ेंगे. Flee, get you far off, dwell deep, O ye inhabitants of Hazor, saith the Lord, for Nebuchadnezzar king of Babylon had taken counsel against you, and hath conceived a purpose against you. Arise, get you up unto the wealthy nation that dwelleth without care, saith the Lord, which have neither gates nor bars, which dwell alone, and their camels shall be a booty, and the multitude of their cattle a spoil. And I will scatter into all winds them that are in the utmost corners, and I will bring their calamity from all sides thereof, saith the Lord. And Hazor shall be a dwelling for dragons, and a desolation for every. There shall no man abide there, nor any son of man dwell in it. The word of the Lord that came to Jeremiah the prophet against Elamin in the beginning of the reign of Zedekiah king of Judah, saying, Thus saith the Lord of hosts, Behold, I will break the bow of Elam, the chief of their might, and upon Elam will I bring the four winds from the four quarters of heaven, and will scatter them toward all those winds, and there shall be no nation, whither the outcasts of Elam shall not come. For I will cause Elam to be dismayed before their enemies, and before them that seek their life, and I will bring evil upon them, even my fierce anger, saith the Lord, and I will send the sword after them, till I have consumed them. And I will set my throne in Elam, and will destroy from thence the king and the princes, saith the Lord. But it shall come to pass in the later days that I will bring again the captivity of Elam, saith the Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते हैं. थैंक यू जीसस. हम पढ़ेंगे जरमिया की भविष्यवाणी, उसका 48 अध्याय और 39 अध्याय हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे. मोआब का विनाश. मोआब के विषय इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, नबो पर हाय, क्योंकि वह नष्ट हो गया. किरियातैम की आशा टूट गई, वह ले लिया गया है. ऊंचा गढ़ निराश और विस्मित हो गया है. मोआब की प्रशंसा जाती रही. हेशबोन में उसकी हानि की कल्पना की गई है. आओ हम उसका ऐसा नाश करें कि वह राज्य न रह जाए. वह मदमेन तू भी सुनसान हो जाएगा. तलवार तेरे पीछे पड़ेगी. होरोनायम से चिल्लाहट का शब्द सुनो. नाश और बड़े दुख का शब्द सुनाई देता है. मोआब का सत्यानाश हो रहा है.
उसके नन्हे बच्चों की चिल्लाहट सुन पड़ी, क्योंकि लोहित की चढ़ाई में लोग लगातार रोते हुए चढ़ेंगे और होरोनाइम के उतार में नाश की चिल्लाहट का संकट हुआ है। भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उस अधमूए पेड़ के समान हो जाओ जो जंगल में होता है, क्योंकि तू जो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा और कामोश देवता भी अपने याजकों और हकीमों समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा के वचन के अनुसार नाश करने वाले तुम्हारे हरेक नगर पर चढ़ाई करेंगे और कोई नगर न बचेगा। घाटी वाले और पहाड़ पर के चौरस भूमि वाले दोनों नष्ट किए जाएंगे। मोवाब के पंख लगा दो ताकि वह उड़कर दूर हो जाए, क्योंकि उसके नगर ऐसे उजाड़ हो जाएंगे कि उनमें कोई भी न बसने पाएगा। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। मोवाब के नगरों का विनाश। 11 वचन से आगे। मोवाब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है। वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और न बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसे उंडेलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उंडेलेंगे, और जिन घड़ों में वह रखा हुआ है उनको छूछे करके फोड़ डालेंगे। तब जैसे इस्राएल के घराने को बेतेल से लज्जित होना पड़ा, जिस पर वे भरोसा रखते थे, वैसे ही मोआबी लोग कमोश से लज्जित होंगे। तुम कैसे कह सकते हो कि हम वीर और पराक्रमी योद्धा है? मोवाब का तो नाश हुआ, उसके नगर भस्म हो गए और उसके चुने हुए जवान घात होने को उतर गए। राजाधिराज जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यही वाणी है। मोवाब की विपत्ति निकट आ गई और उसके संकट में पड़ने का दिन बहुत ही वेग से आता है। उसके आसपास के सब रहने वालों और उसकी कीर्ति के सब जानने वालों, उसके लिए विलाप करो, कहो हाय, वह मजबूत सोंटा और सुंदर छड़ी कैसे टूट गई। 18 वचन से आगे। हे दीबोन की रहने वाली, तू अपना वैभव छोड़कर प्यासी बैठी रहे, क्योंकि मोवाब का नाश करने वाले ने तुझ पर चढ़ाई करके तेरे दृढ़ गढ़ों का नाश किया है। हे अरोवर की रहने वाली, तू मार्ग में खड़ी होकर ताकती रहे। जो भागता है उससे और जो बच निकलती है उससे पूछ कि क्या हुआ है। मोआब की आशा टूटेगी, वह विस्मित हो गया। तुम हाय हाय करो और चिल्लाओ। अर्नोन में भी यह बताओ कि मोआब नष्ट हुआ है। चौरस भूमि के देश में होलोन, यहसा, मेपात, दीबोन, नबो, बेत दिबलाताइम और किरियाताइम, बेत गामुल, बेत मोन और किरयोत बोस्त्रा, और क्या दूर क्या निकट मोआब देश के सारे नगरों में दंड की आज्ञा पूरी हुई है। यहोवा की यह वाणी है, मोआब का सींग कट गया और भुजा टूट गई है। मोआब का घमंड चूर किया जाएगा, उसको मतवाला करो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बड़ाई मारी है। इसलिए मोआब अपनी छांट में लौटेगा और ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। क्या तूने भी इस्राएल को ठट्ठों में नहीं उड़ाया? क्या वह चोरों के बीच पकड़ा गया था कि जब तो उसकी चर्चा करता तब तो सिर हिलाता था? हे मोवाब के रहने वालों, अपने अपने नगर को छोड़कर चट्टान के दरार में बसो। उस पंडुकी के समान हो जो गुफा के मुंह की एक और घोंसला बनाती हो। हमने मोवाब के गर्व के विषय में सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी है। उसका गर्व, अभिमान और अहंकार और उसका मन फूलना प्रसिद्ध है।
यहोवा की यह वाणी है, मैं उसके रोष को भी जानता हूँ कि वह व्यर्थ ही है, उसके बड़े बोल से कुछ बन न पड़ा। इस कारण मैं मोआबियों के लिए हाय हाय करूँगा, हाँ, मैं सारे मोआबियों के लिए चिल्लाऊंगा। किरहेरेस के लोगों के लिए विलाप किया जाएगा। हे सिब्बम की दाखलता, मैं तुम्हारे लिए याजेर से भी अधिक विलाप करूंगा। तेरी डालियां तो ताल के पार बढ़ गई, वरन याजेर के ताल तक भी पहुंची थी, पर नाश करने वाला तेरे धूप काल के फलों पर और तोड़ी हुई दाखों पर भी टूट पड़ा है। फल वाली बारियों से और मोवाब के देश से आनंद और मगन होना उठ गया है। मैंने ऐसा किया कि दाखरस के कुंडों में कुछ दाख मधु न रहा। लोग फिर ललकारते हुए दाख न रौंदेंगे। जो ललकार होने वाली है वह अब नहीं होगी। हेशबोन के चिल्लाहट सुनकर लोग एलाले और यहस तक और सोअर से होरोनाइम और एलत शलिशिया तक भी चिल्लाते हुए भागे चले गए हैं, क्योंकि निम्रिम का जल भी सूख गया है। यहोवा की यह वाणी है कि मैं ऊंचे स्थान पर चढ़ावा चढ़ाना और देवताओं के लिए धूप जलाना दोनों को मोआब में बंद कर दूंगा। इस कारण मेरा मन मोआब और करहेरेस के लोगों के लिए बांसुली सा रो रो कर अलापता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कमाकर बचाया है वह नष्ट हो गया है। क्योंकि सबके सिर मुंडे गए और सबकी दाढ़ियां नोची गई, सबके हाथ चीर हुए और सबकी कमरों में टाट चीरे हुए और सबकी कमरों में टाट बंधा हुआ है। मोआब के सब घरों की छतों पर और सब चौकों में रोना पीटना हो रहा है, क्योंकि मैंने मोआब को तुच्छ बर्तन के समान तोड़ डाला है। यहोवा की यह वाणी है। मोआब कैसे विस्मित हो गया, हाय हाय करो, क्योंकि उसने कैसे लज्जित होकर पीठ फेरी है। इस प्रकार मोआब के चारों ओर के सब रहने वाले उसका ठट्ठा करेंगे और विस्मित हो जाएंगे। मोआब का कोई बचाव नहीं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो वह उकाब सा उड़ेगा और मोआब के ऊपर अपने पंख फैलाएगा। करियोत ले लिया गया और गढ़ वाले नगर दूसरों के वश में पड़ गए। उस दिन मोआबी वीरों के मन जच्चा स्त्री कैसे हो जाएंगे और मोआब ऐसा तितर बितर हो जाएगा कि उसका दल टूट जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बड़ाई मारी है। यहोवा की यह वाणी है कि हे मोआब के रहने वाले, तेरे लिए भय और गड्ढा और फंदे ठहराए गए हैं। जो कोई भय से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा। थैंक यू जीसस। क्योंकि मैं मोआब के दंड का दिन उस पर ले आऊंगा। यहोवा की यह वाणी है। पैंतालीस वचन से आगे, जो भागे हुए हैं वह हेशबोन में शरण लेकर खड़े हो गए हैं, परंतु हेशबोन से आग और सिहोन के बीच से लौ निकली, जिससे मोआब देश के कोने और बलवइयों के चोंडे भस्म हो गए हैं। हे मोआब, तुझ पर हाय, कमोश की प्रजा नष्ट हो गई, क्योंकि तेरे स्त्री पुरुष दोनों बंधुआई में गए हैं। तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अंत के दिनों में मैं मोआब को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। मोआब के दंड का वचन यहीं तक हुआ। अम्मोन के विषय परमेश्वर का न्याय। अम्मोनियों के विषय यहोवा यूं कहता है, क्या इस्राएल के पुत्र नहीं है? क्या उसका कोई वारिस नहीं रहा? फिर मलकाम क्यों गाद के देश का अधिकारी हुआ? उसकी प्रजा क्यों उसके नगरों में बसने पाई है? यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं अम्मोनियों के रब्बा नामक नगर के विरुद्ध युद्ध की ललकार सुनवाऊंगा, और वह उजड़कर खंडहर हो जाएगा और उसकी बस्तियां फूंक दी जाएगी। तब जिन लोगों ने इस्राएलियों के देश को अपना लिया है, उनके देश को इस्राएली अपना लेंगे। यहोवा का यही वचन है। हे हेशबोन, हाय हाय कर, क्योंकि आई नगर नष्ट हो गया। हे रब्बा की बेटियों, चिल्लाओ और कमर में टाट बांधो।
छाती पीटती हुई बाड़ों में इधर उधर दौड़ो, क्योंकि मलकाम अपने याजकों और हकीमों समेत बंधुआई में जाएगा। हे भटकने वाली बेटी, तू अपने देश की तराइयों पर, विशेषकर अपने बहुत ही उपजाऊ तराई पर क्यों फूलती है? तू क्यों यह कहकर अपने रखे हुए धन पर भरोसा रखती है, मेरे विरुद्ध कौन चढ़ाई कर सकेगा? प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख, मैं तेरे चारों ओर के सब रहने वालों की ओर से तेरे मन में भय उपजाने पर हूँ, और तेरे लोग अपने अपने सामने की ओर ढकेल दिए जाएंगे, और जब वे मारे मारे फिरेंगे तब कोई उन्हें इकट्ठा न करेगा। परंतु उसके बाद मैं अम्मोनियों को बंधुआई से लौटा लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। एदोम के विषय परमेश्वर का न्याय। एदोम के विषय सेनाओं का यहोवा यो कहता है, क्या तेमान में अब कुछ बुद्धि नहीं रही? क्या वहाँ के ज्ञानियों की युक्ति निष्फल हो गई? क्या उनकी बुद्धि जाती रही है? हे ददान के रहने वालों, भागो, लौट जाओ, वहाँ छिप कर बसो, क्योंकि जब मैं एसाव को दंड देने लगूंगा तब उस पर भारी विपत्ति पड़ेगी। यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते? यदि चोर रात को आते तो क्या वे जितना चाहते उतना धन लूट कर न ले जाते? ये वचन को मैंने बोला था, आप हिंदी में पढ़ेंगे तब सुनो। 10 वचन आगे पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने एसाव को उघारा है, मैंने उसके छिपने के स्थानों को प्रकट किया है। ये वॉरफेयर में यूज करने का वचन, ओके। परमेश्वर ऐसा करता है, उघाड़ा करता है और छिपने के स्थानों को प्रकट करता है, यहाँ तक कि वह छिप न सका। उसके वंश और भाई और पड़ोसी सब नष्ट हो गए हैं और उसका अंत हो गया। अपने अनाथ बालकों को छोड़ जाओ, मैं उनको जिलाऊंगा, और तुम्हारी विधवाएं मुझ पर भरोसा रखे। क्योंकि यहोवा यों कहता है, देखो, जो इसके योग्य न थे कि कटोरे में से पिए, उनको तो निश्चय पीना पड़ेगा। फिर क्या तू किसी प्रकार से निर्दोष ठहरकर बच जाएगा? तू निर्दोष ठहरकर न बचेगा, तुझे अवश्य ही पीना पड़ेगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैंने अपनी सौगंध खाई है कि बोसरा ऐसा उजड़ जाएगा कि लोग चकित होंगे और उसकी उपमा देकर निंदा किया करेंगे और शाप दिया करेंगे, और उसके सारे गांव सदा के लिए उजाड़ हो जाएंगे। मैंने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, वरन जाति जाति में यह कहने को एक दूत भी भेजा गया है, इकट्ठे होकर एदोम पर चढ़ाई करो और उससे लड़ने के लिए उठो, क्योंकि मैंने तुझे जातियों में छोटा और मनुष्यों में तुच्छ कर दिया है। हे चट्टान के दरारों में बसे हुए, हे पहाड़ी के चोटी पर किला बनाने वाले, तेरे भयानक रूप और मन के अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। चाहे तू काप के समान अपना बसेरा ऊंचे स्थान पर बनाए, तो भी मैं वहां से तुझे उतार लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। एदोम यहाँ तक उजड़ जाएगा कि जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा और उसके सारे दुखों पर ताली बजाएगा। यहोवा का यह वचन है कि जैसी सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगरों के उलट जाने से उनकी दशा हुई थी, वैसे ही उसकी दशा होगी। वहाँ न कोई मनुष्य रहेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। देखो, वह सिंह के समान यर्दन के आसपास के घने जंगलों में से सदा की चराई पर चढ़ेगा, और मैं उनको उसके सामने से झट भगा दूंगा। तब जिसको मैं चुन लूं, उनको उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। मेरे तुल्य कौन है? कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वह चरवाहा कहाँ है जो मेरा सामना कर सकेगा? देखो, यहोवा ने एदोम के विरुद्ध क्या युक्ति की है और तेमान के रहने वालों के विरुद्ध कैसी कल्पना की है। निश्चय वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा, वह चराई को भेड़ बकरियों से निश्चय खाली कर देगा।
उनके गिरने के शब्द से पृथ्वी कांप उठेगी और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जो लाल समुद्र तक सुनाई पड़ेगी। देखो, वह उकाब के समान निकलकर उड़ आएगा और बोसरा पर अपने पंख फैलाएगा, और उस दिन एदोमी शूरवीरों का मन जच्चा स्त्री का सा हो जाएगा। दमिश्क के विषय परमेश्वर का न्याय। दमिश्क के विषय हमात और अरपद की आशा टूटी है, क्योंकि उन्होंने बुरा समाचार सुना है, वे गल गए हैं। समुद्र पर चिंता है, वह शांत नहीं हो सकता। दमिश्क बलहीन होकर भागने को फिरती है, परंतु कपी ने उसे पकड़ा है। जच्चा की सी पीड़ा उसे उठी है। हाय वह नगर, वह प्रशंसा योग्य पूरी जो मेरे हर्ष का कारण है, वह छोड़ा जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उसके जवान चौकों में गिराए जाएंगे और सब योद्धाओं का बोलना बंद हो जाएगा। मैं दमिश्क के शहरपनाह में आग लगाऊंगा, जिससे बेनहदद के राजभवन भस्म हो जाएंगे। केदार और हसोर के विषय परमेश्वर का न्याय। 28 वचन से आगे। केदार और हसोर के राज्यों के विषय जिन्हें बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने मार लिया, यहोवा यूं कहता है, उठकर केदार पर चढ़ाई करो, पूरब के लोगों का नाश करो। वे उनके डेरे और भेड़ बकरियां ले जाएंगे, उनके तंबू और सब बर्तन उठाकर ऊंटों को भी हाँक ले जाएंगे, और उन लोगों से पुकार के कहेंगे, चारों ओर भय ही भय है। देखा, परमेश्वर भी युद्ध करने के लिए कहता है, अपने चीज़ों को संभालने के लिए। ओके, युद्ध मतलब परमेश्वर के तरफ से जो आत्मिक युद्ध है। ओके, ये नहीं कि हाथापाई। 30 वचन से आगे। यहोवा की यह वाणी है, हे हसोर के रहने वालों, भागो, दूर दूर मारे मारे फिरो, कहीं जाकर छिप के बसो, क्योंकि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने तुम्हारे विरुद्ध युक्ति और कल्पना की है। यहोवा की यह वाणी है, उठकर उस चैन से रहने वाली जाति के लोगों पर चढ़ाई करो जो निडर रहते हैं और बिना किवाड़ और बेंडे के यूं ही बसे हुए हैं। उनके ऊंट और अनगिनत गाय, बैल और भेड़ बकरियां लूट में जाएंगी, क्योंकि मैं उनके गाल के बाल मुंडाने वालों को उड़ाकर सब दिशाओं में तितर बितर करूंगा और चारों ओर से उन पर विपत्ति लाकर डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है, हसोर गिदड़ों का वास स्थान होगा और सदा के लिए उजाड़ हो जाएगा। वहाँ न कोई मनुष्य रहेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। एलाम के विषय परमेश्वर का न्याय। 34 वचन से आगे। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ में यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास एलाम के विषय पहुंचा। सेनाओं को यहोवा यूं कहता है, मैं एलाम के धनुष को जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है तोड़ूंगा, और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहाँ तक तितर बितर करूँगा कि ऐसी कोई जाति न रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए न आए। मैं एलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्राणों के खोजियों के सामने विस्मित करूँगा और उन पर अपना कोप भड़काकर विपत्ति डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है कि तलवार को उन पर चलवाते चलवाते मैं उनका अंत कर डालूंगा, और मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राजा और हकीमों को नष्ट करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। परंतु यहोवा की यह भी वाणी है कि अंत के दिनों में मैं एलाम को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा। दो साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी इस समय के वचनों की जो पढ़ने की अवस्थाएं थे उसमें हमारी सहायता की। हमें अपने समझ देकर वचन के भेद हम में खोलते रहने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं। पवित्र आत्मा, नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।
2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, जॉन 10 चैप्टर 11 वर्स से 21 वर्स, 1 क्रॉनिकल 6 चैप्टर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 11 वचन से 21 वचन, पहले इतिहास की पुस्तक 6 अध्याय। हम 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को अकेले में बैठकर, एकांत में बैठकर अपने व्यक्तिगत समय में पढ़ना है और इसके अंदर से जो वचन हमको सीखने के लिए मिलता है, हमने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसे सीख लेना है। और परमेश्वर चाहता है उस रीति में, उस ऑर्डरलीनेस, उस रचना में हम अपने आप को ढलने देना है। परमेश्वर चाहता है हमें उस प्रकार से इस्तेमाल होने देना है। निश्चित परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा देकर ये काम पूरा होने के लिए, सहायता करने के लिए रखा है। परमेश्वर का आत्मा हमारा सहायक है, इस हमारे काम में हमारी सहायता करता है। निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की आपने हमारी सहायता की है। हमारे ऊपर परमेश्वर अनुग्रह का आत्मा रखा है। हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस, ईश्वरीय रचना में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।